Hello students, welcome to English class. Students, we are doing diary entry these days. We have completed 2 classes about diary entry where I have explained you what diary entry is, the rules and the guidelines to write diary entry in the format, right? And yesterday's class I have explained you 3 short examples of diary writing and which I have asked you all to do the same in your language copies, okay? So now moving on to our other solved examples. Yesterday I have explained you the first question, the second one, and the third one, right? Till here we have completed in our previous class. So today I will be explaining you 2 questions, okay, along with its answer, and I will be giving you 2 questions for your self-assessment work. So let's see what the question is. So the question number 4 here is, you are a member of Mother Teresa Society of your school. Last week, your school arranged a visit to a local orphanage where you met many children. You were so overwhelmed with feelings after meeting these children that you felt an urge to pen down your feelings in your diary. So, student, the fourth question here is कि आप मदर टेरेसा सोसाइटी के मेंबर हैं. जनरली सोसाइटी होती है जो कि एनजीओ चलाती हैं एंड ऑफ रेंज में लाइक अनाथ आश्रम में वृद्धाश्रम में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो आप ऐसे एक सोसाइटी के मेंबर हैं और लास्ट वीक जो है आप एक ऑफ रेंज मतलब अनाथ आश्रम जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, वहां रहते हैं. और वहां जाने के बाद आप जो है बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एकदम से इमोशनल होके बहुत ज्यादा भावुक होकर इतने सारे बच्चों को देख करके, है ना, इतने सारे अनाथ बच्चों को देख के आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए. सो आपने डिसाइड किया है कि आप डायरी एंट्री, आप अपनी जो भी फीलिंग्स है और या जो भी इवेंट था इसकी आप डायरी एंट्री करोगे, राइट? सो हियर इज द डायरी एंट्री. Again, you'll have to write the date, Wednesday, 8 January 2020. I have written here. You have to write down today's date. Okay. Make sure whatever you do, the writing section, the date you have to write is the present day on which you are writing. Okay. Sorry. So here you will be writing today's date and time. Okay. Then of course you have to write down the salutation. Here it is not given, but you have to write down the salutation as well. Now let's see what the content is. Today we paid a visit to the local orphanage. The children were roaming here and there, but their movements were not cheerful. It seemed as if they were looking for their parents everywhere. So starting में आप लिख रहे हैं कि आज आप एक लोकल ऑर्फनेज में गए थे. वहां पे जो बच्चे थे सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन वो बच्चे खुश नहीं थे, क्योंकि जनरली होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दिन भर अपने आप में खुश रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं. लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं वो इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन वो लोग खुश नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जहां भी वो जा रहे हैं हर जगह वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं. सो यू कैन इमेजिन बिना पेरेंट्स की लाइफ बच्चों की कितनी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है. Can these children get back those golden days? These children were looking at us and our uniform as if we had come from a fairy land. अब यहाँ पर जो ऑर्फनेज में बच्चे होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है, एक दो जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, बस खाने को कुछ नॉर्मल से खाना मिल जाता है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं होता है. तो ऐसे ऑर्फनेज में जब हम लोग जाते हैं तो वो लोग हमें ऐसा देखते हैं कि हम कितने बड़े हैं, हमारे कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, जैसे कि हम कोई फेरी लैंड से उतर के आए हैं, हम कोई एंजल हैं, ऐसे उन्हें लगता है, क्योंकि उनके और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. हमारे पास सब कुछ है लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो पहले तो जो है बता रहे कि क्या इनके कभी अच्छे गोल्डन डेज दोबारा आएंगे, क्या इन्हें कभी अपने पेरेंट्स मिल पाएंगे. और फर्दर लिख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो हमें हमारे यूनिफॉर्म की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कि हम किसी फेरी लैंड से आए हैं. Can we do something to bring smile on their faces? Of course we can. We should give them a congenial atmosphere to grow and receive all the benefits of education.
सो नाउ अब फर्दर हम मतलब ऑब्वियसली हम डायरी लिख रहे हैं तो हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं कि क्या हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। हम इनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि इन्हें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज या बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन मिल सके। ओके, सो इस तरीके से इसके अलावा आपको अगर और कोई पॉइंट्स ऐड ऑन करने हैं तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, so this was the fourth question which you have to write down. Moving on to the next solve example, and after this example I will be giving you only questions for self assessment. Okay, because 5 solved examples are much enough for your grade. You celebrated your birthday on a grand scale. All your friends and relatives were present. Record your feelings in a diary entry. So again यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपकी बर्थडे पार्टी थी, बहुत ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था आपका, जिसमें आपके सारे फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स इनवाइटेड थे। सो जो आपकी फीलिंग्स थी आपकी बर्थडे रिगार्डिंग जो भी पूरे दिन भर में हुआ है वो सब आपको डायरी एंट्री करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बर्थडे पार्टी होने के बाद ही आप डायरी एंट्री करोगे तो डे टाइम जो है वो रात का ही आएगा। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सो जस्ट विल go on its solution. Again, date you have to write down today's date and the time. Okay, then salutation, dear Kitty, dear diary, dearest diary, whatever you can write. I'm so happy today that I have no words to express my feelings. Today was my 14th birthday. It was celebrated on a grand scale. We had a function in the hotel Skylark. All my friends and relatives were present. So now अब आप पहले तो स्टार्टिंग करोगे कि इवेंट क्या था उसके बारे में आप बताएंगे आप, और ये बताओगे कि आप बहुत ज्यादा खुश थे। ठीक है, सो आप बता रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है, बिकॉज आज मेरा 14th बर्थडे था और बहुत ही ग्रैंड तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। जो बर्थडे पार्टी थी वो एक बहुत बड़ी होटल में, दैट इज स्काई लार्क होटल, आप कोई भी होटल का नाम लिख सकते हैं। होटल में आपकी बर्थडे पार्टी थी और उस बर्थडे पार्टी में आपके सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रेजेंट थे। How tasteful the hall was decorated. Now how tasteful the hall was decorated means यहाँ पे आप एक्चुअली कोई चीज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा आई कैची था। ठीक है, जो डेकोरेशन होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा डेकोरेशन हुआ था। Each one of my friends brought a beautiful gift for me. I am happy that they enjoyed a lot. They would not stop dancing. Father and mother were extremely happy welcoming the guests and entertaining them. अब फर्दर आप लिख रहे हैं कि आपके सारे फ्रेंड्स इनवाइटेड थे, वो लोग आए, बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं। आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एंजॉय किए, बहुत ज्यादा वो लोग डांस किए, अपने आप को डांस करने से रोक नहीं पा रहे थे। और आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा जो गेस्ट थे सभी को वेलकम करना, उन्हें एंटरटेन करना मतलब उनकी खातिरदारी करना, ठीक है, उन्हें खाना सर्व करना एंड ऑल, उनसे बात करना। तो ये सब करके आपके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश थे। What I can't forget was, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या हाईलाइट चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। What I can't forget was the sumptuous dinner. Everybody seemed to be so badly lost in the delicious dishes that I felt ignored for a few minutes. यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं कि जो सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है आज के इवनिंग का वो ये था कि जो डिनर था वो इतना ज्यादा एक्सट्रीमली टेस्टी था कि जो इतने भी सारे गेस्ट थे वो सब लोग लॉस्ट हो गए थे डिनर खाने में, इतने ज्यादा कि कुछ देर के लिए तो मुझे भूल ही गए कि बर्थडे गर्ल भी यहाँ पर है या बर्थडे पार्टी में आए हैं। इतना ज्यादा खाना टेस्टी था और सब लोग को खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। Today's sweet memory will remain with me for years to come. तो अब जैसे कि मैंने कहा था कि आप एंड करोगे, एक ब्यूटीफुल एंडिंग आप दोगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि आज की जो मेमोरी है वो काफी लंबे समय तक मेरे साथ रहेगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So these questions you have to write down as it is in your language notebook. So next, your next question will be for self-assessment. That is your homework. You have to do it by your own. So for your self-assessment work, I have also given you hints so that it will be helpful for you to write, and you have to write down the diary entry based only based upon the hints given to you. You have to include all the hints given in the question. The first question here is,
Now these are the questions for your homework. You have been advised to improve your spoken English. Write a diary entry expressing your views about it. So क्वेश्चन है कि आपको ये एडवाइस दिया गया था कि आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, ठीक है। अब इसके आपके क्या व्यूज हैं ये आपको एक्सप्रेस करना है। तो इसमें आप ये बता सकते हो कि आप पूरी कोशिश करेंगे अपनी स्पोकन इंग्लिश ठीक करने में, उसे इम्प्रूव करने में। उसे करने के लिए आपने आपके क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या आपने प्लान किया है, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हिंट्स क्या दिए हैं आपको। से दैट यू वुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप बताओगे कि अब से अपनी, बिकॉज इंग्लिश स्पोकन करने के लिए, टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम्युनिकेट। You could never improve your communication skills with reading, with merely reading. You have to start communicating in English, then only you will be able to improve your spoken skills. Okay. So now first thing you will write here is that you will start speaking in English with your friends. Second hint given here is say that you would listen to English news on radio and TV. उसके बाद आप बताएंगे कि आप जो है इंग्लिश न्यूज पढ़ना और सुनना स्टार्ट करेंगे। रेडियोस एंड टीवी चैनल पे आप हिंदी के बदले आप इंग्लिश न्यूज प्रेफर करेंगे। एक्सप्रेस द होप टू बिकम अ गुड स्पीकर, और फिर एंड में बताओगे कि ये सब करने के बाद आप उम्मीद कर रहे हो दैट यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। Okay, so this is the first question which you have to write down. I hope it is clear. आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए किसी ने एडवाइस दिया है, इस पे आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करना है। And the next question here for your homework is, you find your mother over busy with domestic chores. You feel concerned and decided to talk to your father about it. Express your feelings in a diary entry.